about this subject, which is the law of business organizations. Your comments, please. Anyone? Yes sir. जी. सर जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपस में किस तरीके से डील करती हैं, मतलब कौन कौन से लॉज उनको गवर्न करते हैं और किस तरीके से करते हैं, मतलब दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट दैट. But remember, we are talking about business organization. यस सर. You see, I mean, UN is also an organization. Uh, there are many other NGOs which are also organizations, but we may not be specifically talking about them. Instead, we will be talking about only those organizations which are running some sort of businesses. And यस so सर. we will be knowing the laws that will be dealing with the organizations that are running a business. You see? यस सर. Oh, so any idea, any such business organizations in your mind कि कौन सी organizations ऐसी हैं जो जो कि business run कर रही होती हैं? सर जिस तरह डिफरेंट कॉरपोरेशंस होती हैं वो स्टॉक रखती हैं और उसके बाद इन्वेस्टर्स आते हैं खरीदते हैं, मतलब वो एक बिजनेस चेन है. सो दैट टाइप ऑफ बिजनेस आई गेस रन्स अंडर इट. Yeah, corporations is a primary and a primary examples of a business organization. And there are other type of organization, business organizations as well. That is why the title of the subject is laws of business organizations. So there could be different type of business organizations, and that will be depending upon, in fact, so which type of organization should we choose? It depends upon our need, obviously. That is why the law, rather, I would say the government through law has provided different types of business organizations, and so it's up to the sweet will of the people that they should choose either of those organizations depending upon their needs. चूंकि हर टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ प्रोज हैं एंड कुछ कॉन्स हैं, सो यू हैव टू आई मीन यू हैव टू सेटल कि कितने प्रोज आपको फेवर में जा रहे हैं और कितने कॉन्स आपके अपोज जा रहे हैं. ये जो प्लेइंग फील्ड होता है जहाँ पे आपने डिसाइड करना होता है कि आई शुड गो फॉर दैट. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. Someone is trying to call me, और जो भी है उसे कहें कि वेट, वी विल डिसाइड लेटर. कि क्या कर रहे हैं हम, टेक्स्ट कर रहा है, someone is texting. सर मैं उनसे बात करके देखता हूँ सर. और टेल देम दैट वी आर नाउ इन द मीटिंग. सो वैसे भी ये इंट्रोडक्टरी है, जी सर. सो फिर नेक्स्ट वीक से होपफुली हम फॉर्मली स्टार्ट करेंगे जी सर. और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ऐड कर लेंगे. श्योर सर, मैं कह देता हूँ सर. No, I have to go back to. अच्छा जी. Okay, before that, so I was giving you an example. Okay, as I was telling you that there are certain pros and certain cons of different types of business organizations, and you have to choose, and you have to play in this scenario. For example, if I give you an example that there are certain type of
business organizations in which you can have a limited liability. Limited liability means कि जब भी अगर थर्ड पार्टी को उस बिजनेस की वजह से थर्ड पार्टी को लॉस होता है तो one type of law of business organization it provides कि जितने भी उस ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स हैं उनको आप सेल आउट करें और थर्ड पार्टी का लॉस आप कवर कर लें. So this is obviously a pro for the businessman. And in some other type of business organizations, अगर कोई थर्ड पार्टी को लॉस हो जाता है तो not only the assets of the organizations are sold, but the personal property of the businessman, they are also utilized to pay back the losses of the third party. You see, इसमें एक बहुत बड़ा huge difference है. On the one hand, सिर्फ आपके पर्सनल एसेट्स जो हैं सॉरी कंपनी या कॉरपोरेशन या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड टू पे ऑफ द डेट. ऑन द अदर हैंड, नॉट ओनली एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बल्कि आपके अपने एसेट्स भी एट स्टेक हैं. तो ऑब्वियसली यू पीपल वुड बी ट्राइंग के यार मेरे पर्सनल एसेट्स जो हैं वो सिक्योर रहें. ये आपके एडवांटेज में है. सो लॉ जो है वो आपको एक मैकेनिज्म ऐसा प्रोवाइड करता है, अगर आप एक टाइप ऑर्गेनाइजेशन ऑप्ट करें तो आपके पर्सनल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन मिल जाती है एंड दे कांट बी यूटिलाइज्ड फॉर पेइंग द डेट ऑफ द थर्ड पार्टी. ठीक है, यू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क. यस सर. ठीक है, इट्स वेरी बिग decision we can say that a businessman has to make, but again we know in law there is always a concept of give and take. अपने आप को mute रखें whoever is there. Okay, now you see कि on the one hand आपको लॉ एक फेवर दे रहा है और आपकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड कर रहा है एंड योर पर्सनल एसेट्स आर बीइंग सिक्योर्ड, सेव्ड. लेकिन ये जो आपको फेवर दे रहा है वो ऑब्वियसली एट द कॉस्ट ऑफ सम अदर थिंग देगा, फ्री में नहीं देगा. ये अगर वो फ्रीली ये ऑप्शन तमाम बिजनेसमैन को दे दे फिर तो थर्ड पार्टी को लॉसेज ही होते रहेंगे और फिर तो अल्टीमेटली कोई बिजनेस कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ट्रांजैक्शन ही नहीं करेगा जिसमें सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के एसेट्स अवेलेबल हैं और पर्सनल प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द कॉर्पोरेट लॉ. यू माइट हैव हर्ड लिमिटेड लाइबिलिटी. इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्पेशली. सो व्हाट आई वाज सेइंग, certain type of organizations have these pros to have limited liability, others do not have. अब पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, currently there are at least 3 types of, not 3, maybe we can say there are 4 types of business organizations which are being offered by the law to the business community, and the businessman has to opt either of those options. Again, as I told you, depending upon their own needs. For example, if you want कि आप इंडिपेंडेंट हो अपने बिजनेस में तो ऑब्वियसली आप एक सेपरेट इंडिपेंडेंट बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे. ठीक है, बट समटाइम्स यू विश कि आप एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करें जिसमें कुछ ज़्यादा आपको यू नीड मोर मनी, यू नीड मोर कैपिटल. आपके पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं है तो ऑब्वियसली यू विल थिंक अबाउट अनदर पार्टनर, एंड व्हेन यू विल थिंक अबाउट अनदर पार्टनर, यहाँ पे फिर आपका जो इंडिपेंडेंस है दैट वुड बी कॉम्प्रोमाइज्ड. सो यू हैव टू ब्रिंग हिम इनटू द सर्कल एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ हिज ओन विशेस एज वेल. आपने गिव एंड टेक करना होगा, एक एग्रीमेंट करना होगा बिटवीन योरसेल्फ and the other partner. So this is another example. When you need more capital, you are going to start a little more
little larger type of businesses, उसके लिए you need more capital, and obviously if you don't have capital you need to make some other people the partner of your business. फिर obviously जब दूसरा बंदा है उसके साथ आपने terms and condition decide करने हैं, आपके क्या responsibilities होंगी, उसके क्या होंगे, डिफॉल्ट में क्या करेंगे,